Today topic is proximity sensor. This is the next type of the transducer which are used in the measurement techniques, and proximity sensor are many types, just like the inductive sensor and capacitive sensor. And now today we will discuss one by one. So first of all, I will introduce what is the proximity sensor. Proximity sensor, or simply we can say that it is a sensor which is used to detect the presence of the nearby object without make any physical contact. सिंपली वी कैन से दैट कि ये ऐसा सेंसर होता है जो बॉडी को डिटेक्ट करता है। वो बॉडी हमारा मेटल और नॉन मेटल दोनों हो सकता है। विदाउट सेंसर और बॉडी से फिजिकल कांटेक्ट वो बिना बनाए इसको डिटेक्ट करता है। तो सिंपली यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे कि आपके कितने टाइप्स के आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैं। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स बेसिकली जो डिवाइड किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ कि मीन्स विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड या विच क्वांटिटी कैन बी चेंज. Okay, in inductive sensor, inductive proximity sensor, that is the property like induction it change when the metal is approached toward the sensing coils, and when the value of the capacitance change, then this is called the capacitive proximity sensor. Now the first one is the inductive sensor. First of all, here we see the figure of the inductive sensor, in which just like we see with the help the color is orange, which represent the inductive coil, and then number of circuitry which are used, and then after the coils means after the coaxial cables which are used to connect the supply. Now this is the basic circuit of the inductive proximity sensor, in which means in inductive sensor there is an inductive coil, and then oscillator and level detector, and then output switching, and here the oscillator which is used to provide the oscillation, means to provide the alternating electrical signal to the inductive coil, and when the and level detector which is used to detect the level of the amplitude of the oscillation, having the level detector having the threshold level, and above which produce the output, and below which threshold level and the which, so this is in off condition. Now the oscillator which is used to produce the alternating currents and when flow through the inductive coil, and this is the property of the inductive coil. When the inductive coil is a flow through the means when the current is flow through the inductive coil, which produce the magnetic field and the nearby the surrounding. एंड उसके बाद होता क्या है कि जब हम मेटल्स जब हमारे आते हैं नियर द सेंसिंग क्वाइल्स, देन ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज़ गिवन बाय द फ्रॉडेला की ये स्टेटमेंट था कि जैसे कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हमारे मेटल्स में भी करंट फ्लो करेंगे, और दिस करंट इज़ कॉल्ड द ईडी करंट. तो एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन एट स्टार्टिंग जब हम करंट्स को इंडक्टिव कॉइल से फ्लो कराते हैं, तो वो अपना खुद एक मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करता है, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है या मैग्नेटिक लाइंस को प्रोड्यूस करता है. और जो मेटल में हमारा जो ईडी करंट होता है, वो करंट जो क्या करता है कि मेन फील्ड्स को वो अपोज करता है. मीन्स ड्यू टू द अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ स्टेटमेंट ये था कि हमारा जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या ईडी करंट प्रोड्यूस होता है, तो ये इसको अपोज करता है जिसके द्वारा वो प्रोड्यूस होता है. तो सिंपली वी कैन से दैट ओवरऑल हियर द वैल्यू ऑफ द field decrease or value of the flux decrease, and then current is also decrease. Okay, and one thing आप जो फार्मूला जानते हैं, अगर किसी कोयल से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो दैट इज़ आई. तो जो हमारे कोयल के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनके द्वारा जो फ्लक्स लिंक होगा, दैट इज़ एन फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू द आई, एंड देन एन फाई इज इक्वल टू एल इन टू आई, वेयर एल इज़ द कॉन्स्टेंट एंड विच इज़ कॉल्ड द इंडक्टेंस ऑफ दैट कोयल, एंड व्हेन एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई. Simply we can say that when the current decreases or flux decreases, current also decreases, and we can say that the induction, that is L, the value of L can be changed.
तो दिस इज़ पॉसिबल when the metal are approaches toward the sensor. Simply we can say that कि हमारा जब metal जब approach करता है toward the inducting sensor or the sensing coil, then the amplitude of the oscillation decrease, means जो current का हमारा जो amplitude है it can be decrease. अब further अगर metal और हमारा approach करेगा toward the sensing coil, then at time at a certain time the amplitude become stopped, simply no current flow through the circuit. The finally we can say that कि हमारा जो अगर हम यहाँ पे अगर कंक्लूड करना चाहें तो अगर मैं ये सकता है कि जब मेटल आपका अप्रोच करता है तो लोड हमारा जो होता है ऑसिलेशन सर्किट पे इंक्रीज करता है. तो व्हेन द लोड इंक्रीजेज द करंट इंक्रीजेज इन द मेटल्स और द इन द फॉर्म ऑफ द ईडिंग करंट एंड which reduces the amplitude of the alternating current. तो अब सिंपली भी कैन से दैट कि अगर हमारा कोई अगर मेटल प्रेजेंट नहीं है तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो हाई होता है इन इंडक्टिव कॉयल, एंड व्हेन द मेटल अप्रोचेज विद द सेंसर देन इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल. दिस इज द बेसिक ऑफ द इंडक्टिव प्रोक्सिमिटी सेंसर. Now, proximity sensor or sensor able to detect the presence of nearby object without any physical contact. ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया आपको मैंने तो ये नोन है. ए proximity sensor emit an electromagnetic field or a beam of electromagnetic radiation that is infrared. Look for change in the field or return signal. The object being sensed often referred to as the proximity sensor target. तो हमारा जो ऑब्जेक्ट जो अप्रोच करता है टुवर्ड द सेंसर इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमिटी सेंसर टारगेट. प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैन हैव हाई रिलायबिलिटी एंड लॉन्ग फंक्शनल लाइफ because of the absence of the mechanical part and lack of the physical contact between the sensors and the sense object. तो ये एक प्रॉपर्टी है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कि हाई रिलायबल होता है एंड लॉन्ग फंक्शनल लाइफ मीन्स ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है बिकॉज देयर इज़ द एब्सेंस ऑफ द मैकेनिकल पार्ट एंड ऑल्सो द लैक ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेंसर एंड द सेंस्ड ऑब्जेक्ट. ना अभी मैंने डिस्कस किया कि हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर टू टाइप्स के होते हैं. तो अभी मैंने कुछ जब डिस्कस किया जो वर्किंग साफ्ते होते हैं. देन इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैन डिटेक्ट मेटल टारगेट अप्रोचिंग द सेंसर विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द टारगेट. तो यहाँ पे सर्किटरी आपको दिख रही है, जो सर्किटरी हमने वहाँ बनाया था किस तरीके से आपका. अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें ऑब्जेक्ट आपका होता है, देन एक आपका एलसी सर्किट होता है दिस टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन, देन स्विचिंग लेवल एंड देन इस तरीके से आउटपुट होता है आउटपुट एम्पलीफायर. और सिंपली वी कैन से दैट इंटरनल सर्किट जो अभी हमने फर्स्ट फिगर को डिस्कस किया है तो इंटरनल सर्किट में वही आपके स्विचिंग लेवल्स हो गए और एम्पलीफायर होते हैं. और जो नेक्स्ट फिगर आपको दिख रहा है जो टारगेट मेटल है जो यहाँ पे बना हुआ है जब अप्रोच करता है टुवर्ड द सेंसिंग कॉइल, तभी हमने किस तरीके से डिस्कस किया कि हमारे सेंसिंग कॉइल में जब करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है. लेकिन जब मेटल टारगेट जो अप्रोच करता है टुवर्ड द सेंसिंग कॉइल देन सेंसिंग का तरह अप्रोच करता है तो एक ईडी करंट जनरेट होता है और वो ईडी करंट जो है वो डिक्रीज करता है, मींस ओवरऑल इफेक्ट को वो करंट को डिक्रीज करता है बिटवीन द मेटल्स एंड द सेंसर कॉइल्स. तो सिंपली वही यहाँ डिस्कस किया गया. देन हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय द कॉइल इन द ऑसिलेशन सर्किट. तो मैंने अभी वही डिस्कस किया कि मैं जो हमारे यहाँ पे सेंसर्स कॉइल होते हैं वो हाई मैग्नेटिक फील्ड आपके जनरेट जो करता है वो बाय द कॉइल इन द ऑसिलेशन सर्किट. When the target approaches the magnetic field or induction current flow in the target due to the electromagnetic induction. ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि आपका जब टारगेट अप्रोच करता है टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंडक्शन करेंट फ्लो इन द टारगेट मीन्स हमारा जो अप्रोच कर रहा है टुवर्ड सेंसर ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. As the target approaches the sensor, the induction current flow increases. ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि आपके इंडक्शन करंट में वो करंट फ्लो इंक्रीज करेगा एंड विच कॉजेज द लोड ऑन द ऑसिलेशन सर्किट टू बी इंक्रीज. अभी मैंने डिस्कस किया कि जब वहाँ पर इंडक्शन करंट इंक्रीज करेगा विच कॉजेज द लोड ऑन द oscillation circuit to increase, then oscillation attenuates or stop. When the target approaches near to the sensor then maybe oscillation attenuate or stop. तो जो फिगर आपको लास्ट में दिख रहा है यहाँ सिंपली वही फिगर दिखाना चाहे कि when there is absence of the metal then the amplitude of the alternating current is high and when the metal present then amplitude can be decreased.
तो जो हमारा यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है या इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं किस तरीके से हमारे जो डिटेक्टर हैं जो अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड द सेंसर, तो उसके भी आप हम कह सकते हैं कि आप इंडक्टेंस चेंज हो रहा है, इसलिए इसको इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहा गया है। नाउ नेक्स्ट इज़ द कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर जस्ट लाइक इंडक्टिव ही होता है, सिर्फ थोड़े से सर्किटरी में चेंज होता है। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ बेसिकली बाय नेम जो कैपेसिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी यूज करेगा। मीन्स यहाँ पे आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होते हैं, जो एक प्लेट पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एंड बिटवीन द टू प्लेट एंड देयर इज द नॉन कंडक्टिव मीडियम एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटिटी परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन, एंड वी गेट द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन A by D, where epsilon is the permittivity of the non-conducting medium and A is the area of the plate and D is the distance between the plate. And one thing, also the capacitance of the plates capacitor is also given by C is equal to Q of 1V. तो सिंपली वी कैन से दैट हियर हमें जो प्रॉपर्टी यूज करना है यहाँ पे कैपेसिटिव की प्रॉपर्टी यूज करना है, मीन्स टू चेंज द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस चेंज होगा व्हेन द मेटल अप्रोचेस टुवर्ड द सेंसर, then this sensor is called the capacitive proximity sensor. So first of all I will discuss how the capacitance change of the play of the क्या कहता है capacitance. तो we know that the formula C is equal to Q upon V, this is the known formula. तो अगर हम प्लेट्स पर अगर चार्ज को कांस्टेंट कर दें, then we can say that the capacitance is inversely proportional to the V. Means when the potential increase the capacitance decrease, when the potential decrease then capacitance increase, means inversely proportional. And one thing, when the potential V at any point is defined as the moving the unit charge from infinity to that point, and which is represented by the formula, means V is equal to Q upon 4 by epsilon R, and V is proportional to, simply we can say that is 1 by R. मीन्स when the आप अगर डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल अधिक होगा, अगर आपका डिस्टेंस अधिक होगा तो पोटेंशियल हमारा कम होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करेंगे, हमारा जो एक प्लेट दिख रहा है सिर्फ आपकी पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स हमारा जो मेटल है वो एक पॉजिटिव या मेटल इलेक्ट्रोड होता है, दैट इज़ फिक्स इलेक्ट्रोड, और उसको हमने यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ। सिंपली वी कैन से दैट हियर मीन्स ये पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आपने प्लेस किया। देन वी टेक द न्यूट्रल प्लेट्स प्लेस्ड, जो प्लेस किया गया है, जो जिस पे आपका ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन निगेटिव चार्ज इंड्यूस आपका हो जाएगा इंटरनल साइड ऑफ द न्यूट्रल प्लेट, एंड बिकॉज दिस प्लेट इज़ न्यूट्रल, देन जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही हमारा बाहर पॉजिटिव होगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक सप्लाई लगा के वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देंगे टू मेक द दिस इलेक्ट्रोड न्यूट्रल। Now we have to find the potential at the metal electrode or fixed electrode due to these two negative charge and the positive charge. तो अगर हम देखेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के द्वारा नेगेटिव होगा एंड पॉजिटिव चार्ज के द्वारा पॉजिटिव होगा। तो मीन्स हमारा जो मेटल इलेक्ट्रोड, जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड में हमारे यहाँ पे दो पोटेंशियल होंगे, एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बट द इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव इज़ हायर विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रोड इज़ वो स्मॉलर देन द पॉजिटिव चार्ज। तो आपने भी देखा जो फार्मूला आप लिखा हुआ है V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, तो वी कैन से दैट जब आपका नेगेटिव का डिस्टेंस अगर आपका कम है तो उसका इफेक्ट उस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे अधिक होगा विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव। बट ओवरऑल वी कैन से दैट कि हमारे यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज ही होना है, कह सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, लेकिन इफेक्टिव हमारा जो होगा वो निगेटिव होगा, तो ओवरऑल पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा। तो पोटेंशियल जब हमारा डिक्रीज होगा तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो फर्दर जो प्रिंसिपल हमारा ये है कि हमें यहाँ पे पोटेंशियल को और डिक्रीज करना है, मीन्स डिक्रीज मीन्स मोर निगेटिव। सिंपली वी कैन से दैट मान लिया आपका -2 पोटेंशियल है, एंड अगर आपने किसी एनी हाउ डिक्रीज किया अप टू द -4, देन वी कैन से दैट हियर द पोटेंशियल डिक्रीज फ्रॉम -2 to -4।
तो हमें फर्दर और डिक्रीज करना है, तो यहाँ पे ये होता है कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रल इलेक्ट्रोड उसको ग्राउंड कर दें। तो ग्राउंड करने से क्या होगा, दिख रहा है आपका, हमने यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ, जिससे हम जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे ग्राउंड हो जाएंगे। तो ग्राउंड हो जाएंगे तो सिर्फ हमारा वहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, और निगेटिव चार्ज से जो मेन इलेक्ट्रोड है, जो मेटल इलेक्ट्रोड है, उस पर जो पोटेंशियल होगा सिर्फ निगेटिव होगा। मीन्स जब हमारा जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट था पॉजिटिव एंड निगेटिव का, तो पोटेंशियल कुछ रहा होगा, और जब आपने सिर्फ निगेटिव लिया तो ऑब्वियस सी बात हमारा यहाँ पे पोटेंशियल और डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव और डिक्रीज हो रहा है। मीन्स कि हमारा यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, आप सिंपली यहाँ कह सकते हैं। तो जब कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे हमारा यहाँ पे तो यह लॉजिक यूज किया गया। तो एनी हाउ वी हैव टू डिक्रीज द पोटेंशियल टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। नाउ जो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका यूज किया गया बिकॉज हम सभी जानते हैं हमारा जो अर्थ का सरफेस होता है वो आपका क्या कहते हैं निगेटिव चार्ज होता है, और बिकॉज जो हमारा अर्थ का कोर होता है हाईली इनर्जाइज, मीन्स वो बहुत अधिक टेम्परेचर होता है। तो हियर वी कैन से दैट देयर इज द पॉजिटिव आयंस एंड मीन्स पॉजिटिव चार्जेस। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे सरफेस पे नेगेटिव चार्जेज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो एक ग्राउंड की तरह है। तो अगर हम सिंपली, तो दिस इज़ द सेकेंड फिगर वी कंक्लूड दैट कि हम यहाँ पे कोई भी हम अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो अभी हमने जो डिस्कस किया, कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे अगर वो ग्राउंड है तो ऑब्वियस सी बात है उसके द्वारा अगर वो टुवर्ड अगर वो क्या कहते हैं मेन इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल वो डिक्रीज करेगा, नेगेटिव मीन्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज फर्दर व्हेन दैट नेगेटिव चार्जेज अप्रोचेस टुवर्ड द मेटल इलेक्ट्रोड और टुवर्ड द सेंसर, मीन्स द आपका डिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीजेज इन निगेटिव, मीन्स निगेटिव होने का मतलब है कि मोर निगेटिव। तो वी कैन से दैट द पोटेंशियल डिक्रीज द कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल या किस तरीके से ये सेंसर्स हमारा यूज करता है। जो सिंगल प्लेट सेंसर है ये आपका कैपेसिटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर का आपका ये पार्ट है, और जो मेटल इलेक्ट्रोड है, और फिर हमने एक जैसे एक पर्सन को लिया हुआ है जो ऑन द ही इज़ ऑन द अर्थ सरफेस, मीन्स द पर्सन इज ग्राउंडेड। और तो सिंपली आप जो अभी हमने कंडीशन जो डिस्कस किया कि किस तरीके से आपका वो पॉजिटिव था और निगेटिव था, और यहाँ पे जैसे जैसे हमारा ये अप्रोचेस टुवर्ड द सेंसर अप्रोच करेगा तो आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे कोई भी मेटल हो गया या नॉन मेटल बॉडी जो है वो सेंसर की तरफ जाएगा तो हमारा वोल्टेज या डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर। Then a capacity proximity sensor sense the presence of an object usually called the target without physical contact, and they are designed to detect both metal and non-metallic target. Okay. Then capacity proximity sensor consists of high frequency oscillator along with the sensing surface formed by two metal electrode. When an object come near the sensing surface, it enters the electrostatic fields of electrodes and charge the capacitance of the oscillator. As a result, oscillator circuit start oscillator means अब यहाँ क्या होगा कि हमारा जब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट नियर बाई सेंसिंग सरफेस क्या आएगा, इट एंटर इनटू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोड, देन चेंजेस द कैपेसिटेंस ऑफ द ऑसिलेटर। तो कैपेसिटेंस चेंज होगा ऑसिलेटर का, एज ए रिजल्ट ऑसिलेटर सर्किट स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो जब ऑसिलेटर सर्किट होगा उस कैपेसिटेंस चेंज होने की वजह से क्या होगा, वो ऑसिलेटिंग स्टार्ट करेगा एंड चेंज द आउटपुट स्टेट ऑफ द सेंसर व्हेन इट रीचेज सर्टेन एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे सिंपली वी कैन से दैट हमारा जो सेंसर का जो आउटपुट स्टेट है वो चेंज होगा और इट रीचेज द सर्टेन एम्पलीट्यूड। एज द ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द सेंसर द ऑसिलेटर एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज। और सिंपली वी कैन से दैट हमारा जब ऑब्जेक्ट जो है जब सेंसर के तरफ जाएगा मीन्स वहाँ से हटेगा तो ऑसिलेटर एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज करेगा एंड स्विचिंग द सेंसर बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, और सेंसर को वो इनिशियल स्टेट में वो बैक कर देगा। Then larger the dielectric constant of the target, easier is for the capacitance proximity sensor। और simply we can say that for example अगर आप देखा होगा आपने फार्मूला C is equal to epsilon A by D होता है and epsilon is the dielectric constant of the target। तो जितना ही अधिक हमारा dielectric constant होगा टारगेट का उतना ही ईजियर होगा कैपेसिटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर को वर्क करने में।
तो अभी जो हमने डिस्कस किया किस तरीके से आपका एक सेंसर एक मेटल प्लेट इलेक्ट्रोड होता है जो आपके कैपेसिटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर में होता है लाई करता है, देन ऑसिलेटर सर्किट, देन फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर एंड टू कंट्रोल द डिवाइसेस. When the sense object moves toward the sensor, then its capacitance change, then capacitance change, then the value of oscillation in oscillation circuit also change, means frequency can be changed. And then here the frequency detector is used to detect the change in the frequency, and then it can be given to the control device. So this is about the inductive and capacitive proximity sensor. Now next here we discuss about the advantage disadvantage of the two sensor. Now first one is the inductive proximity sensor advantage, accurate compared to the other technologies. तो हमारा इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, दिस इज एक्यूरेट कंपेयर टू द अदर टेक्नोलॉजीज. हैव हाई स्विचिंग रेट, मीन्स हैव हाई स्विचिंग रेट मीन्स कि जैसे आपका ऑब्जेक्ट जब सेंसर की तरफ जाता है तो आउटपुट कुछ और होगा, ठीक है, मीन्स चेंज होगा, और फिर जो वहाँ से दूर हटेगा मीन्स अवे फ्रॉम द सेंसर, देन आउटपुट कैन बी चेंज्ड. तो जो स्विचिंग रेट है दैट इज़ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इट इज़ वेरी हाई इन द इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड कैन वर्क इन हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन. मीन्स आप कह सकते हैं किसी भी मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये वर्क कर सकता है. मीन्स सिंपली आप कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर का इफेक्ट इस सेंसर पे नहीं हो सकता है. देन डिसएडवांटेज ऑफ द इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इट डिटेक्ट ओनली द मेटालिक टारगेट. और या सिंपली आप कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट और मेटालिक नॉन मेटालिक दोनों सकता है, बट द इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट ओनली द मेटालिक टारगेट बिकॉज द बेसिक प्रिंसिपल इज़ दैट कि हमारा जब वो टारगेट अप्रोच करता है टुवर्ड द सेंसिंग कॉइल ऑफ द इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, देन द ईडी करंट इज प्रोड्यूस, और द ईडी करंट इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन द मेटल ऑब्जेक्ट, नॉट इन द नॉन मेटल ऑब्जेक्ट. एंड देन सेकेंड डिसएडवांटेज इज ऑपरेटिंग रेंज में भी लिमिटेड. तो इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है, मीन्स इसका जो एप्लीकेशन है बहुत लिमिटेड है, मीन्स ये हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि जो वो सिर्फ मेटल्स के लिए होता है. तो दिस इज़ अबाउट द इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जिसका एडवांटेज डिसएडवांटेज में डिस्कस किया. एंड देन कैपेसिटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर एडवांटेज, इट कैन डिटेक्ट बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा जो कैपेसिटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है ये दोनों को डिटेक्ट करता है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कैपेसिटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर. इट्स हाई स्पीड, इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है. देन एप्लीकेशन में टू मेक द मेटल डिटेक्टर एंड देन ट्रैफिक लाइट एंड देन कार वॉशेस. So this is about the proximity sensor, and then it's two type, means that is first one is the inductive proximity sensor and the capacitive proximity sensor.